Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the 14th lectures of manufacturing technology. So, in the previous series of the lecture, we are discussing about the various different types of the welding processes, right? As per the classifications of the welding processes, like on the gas welding process, arc welding process, resistance welding process, spot welding, solid state welding process, atomic hydrogen and energy welding process. So in this type of the taglines, we are discussing the various types of the welding processes, but in after the performance of the welding, there is a possibilities of the chances of the generations of the welding defect, which is due to the basic reason behind the development of the welding process is either the wrong some kind of the wrong joint preparations, some kind of the improper selections of the process parameter, some kind of improper selections of the welding consumables. These are the basic reason behind the developments of the. Sometimes there is some kind of the changes in the metallurgically, some kind of the contaminations are the generated during the welding process. That is also one kind of the chances of the generations of the welding defects. So in today's series of the lecture, we try to understand about the various welding defects. So we start with the different types of the welding defects. So we start the welding types of the welding defects. So these are the various welding defects which is generated during the process of the any kind of the welding process. Basically, as we are discussing the most of the techniques which are generated during the arc welding processes and the gas welding processes. At the time of the resistance welding, solid state welding, there is a less possibilities of the generations of the welding defect, but that processes have certain kind of the limitations of the thickness to be joints with the different material configurations, right? So these are the different welding defects, which is the slag inclusions, then the undercuts, then the porosities, incomplete fusions, incomplete penetrations, overlaps, underfills, spatters, excessive convexities, then the excessive penetrations. These are the various types of the welding defect we try to understand one by one with the basic understandings. So we start with the first welding defect, which is the types of the welding defect, which is the first welding defect, which is the slag inclusion. So we start with the slag inclusion. So as the name is itself is state about that, the slag which is generated due to the presence of the some kind of the flux, right, which is not removed during the after the completions of the first pass, and before removing the slag from the at the deposited weld bed, and you are certainly deposit the second layer of the weld bed. uh, there is some possibilities, which is the slag inclusions, the slag which is the cover which is formed after the depositions of the layer through the use of the flux. We removed it after the depositions of the layer by the chipping hammers and the wire brush, but at some sharp corner some flux powder is there, which is still there after the removing from the brush, and that is the main reason behind the generation of the slag inclusion. That is the one kind of the reason. The another reason, which is about the lower ampere we are using, improper techniques we are using, right? We are discussing the two techniques, which is the rightward techniques and the leftward techniques. So there is some kind of the possibilities to generations of this kind of the defect due to the improper selections of the welding technique and the slow travel speed. So a slag is a waste of materials which is created, and a bit of this solid material can become incorporated into the weld. Bits of flux and rust
कैन बी काउंटेड एज ए स्लैग। तो जो एक छोटे छोटे एटम्स रह जाता है फ्लक्स के, विच इज़ काउंटेड एज ए स्लैग। सो द बेसिक रीज़न बिहाइंड the generations of the slag inclusion, which is the lower ampere, second which is the improper techniques and the slower travel speed. These are the basic reason for the generations of the slag inclusion. How we can prevent this chances of the defects generations, which is the increases of the amperes. If we are increase the current, right, there is a less possibilities to generations of the, so this is the basic reason। जो यहाँ पे जो पैरामीटर्स की बात की है ना, यहाँ पे जो कोजेस आपको दिखा है वो किस पैरामीटर की इफेक्ट के थ्रू जो है वो सैग इंक्लूजन्स जो है वो डेवलप्ड होता है, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो जनरल टेक्निक्स के रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि स्लैग्स जो है वो एक छोटे छोटे फ्लक्स के बिट्स है, एटम्स है, वो रह जाते हैं, उसके लिए जो है वो स्लैग इंक्लूजन्स रहने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर आप पैरामीटर्स की बात करो तो आप अगर दोनों पैरामीटर को इंक्रीज़ करके लगाओगे, जैसे आपका एम्पियर हो गया और आपका ट्रैवल स्पीड, वो हायर स्पीड पे आप जो है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो फिर इस डिफेक्ट को जो है वो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ रिपेयर? सो अब इसको सपोज ये डिफेक्ट आ गया तो इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं? वी कैन रिमूव बाय द ग्राइंडिंग और द अदर मैकेनिकल प्रोसेसिंग। जैसे आपका ग्राइंडिंग हो गया, जैसे आपको अब ये डिफेक्ट पता कैसे चलेगा? तो स्लैग इंक्लूजन्स जो है वो आपने कितनी डेप्थ में उसको वेल्ड किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आप जैसे ही जो है उसको रिपेयर करने के पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसेसेस है। और उस नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे आपका सरफेस के ऊपर हो गया तो फिर आपको एमपीटी या फिर जैसे आपका ये हो गया लिक्विड पेनिट्रेंट, उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। पर अगर वो डेप्थ में, तो फिर यूटी और आरटी करके आप जो है वो सैग इंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसको ग्राइंड करके या फिर गाउजिंग करके उसको उस मेटल को वहाँ पर रिमूव करके उसको स्लैग को वहाँ से हटा के फिर आपको फिर वहाँ पे आपको फिर से वेल्ड करना पड़ेगा और उसको रिपेयर करना पड़ेगा, वरना जो है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर जो है वो क्रैक में जो है वो प्रोपोगेट हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सैग इंक्लूजन। यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स के अंदर देखोगे तो फोटोग्राफ के अंदर एक बीड जो है वो पहले से डिपॉजिटेड है और दूसरा बीड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जो है उसको डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक जो है उसको प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन नहीं किया गया है। थोड़ा सा आपको स्लैग जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर दिख रहा है। अब वो जो है वो स्लैग इंक्लूजन्स क्रिएट होने का जो है वो एक रीज़न हो सकता है। देन द सेकंड विच इज़ द अंडरकट। अब यहाँ पे जो है वो एक स्कीमेटिक जो है वो आपको डायग्राम दिया गया है, जो आप जो है वो एक तरीके से मैं आपको बोल सकता हूँ ना कि प्रॉपर जो है वो आपका वेल्ड बीड जो है वो आपने एक लेयर डिपॉजिट किया तो वो जो है वो बेस मेटल के साथ जो है वो प्रॉपर जो है वो मर्ज नहीं हो रहा है, कहीं पे एक गैप छूट रहा है, और उसके ऊपर जो है वो आप दूसरा ही लेयर आप डिपॉजिट कर दोगे तो वो जो है वो एक जो छोटा सा एक कॉर्नर या फिर एक गैप बन जाएगा, दैट इज डेजिग्नेटेड एज ए अंडरकट। द अंडरकट इज एन एक्सट्रीमली कॉमन डिफेक्ट्स, कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट। इट्स हैपन व्हेन योर बेस मेटल इज बर्न अवे। अब जैसे आपका बेस मेटल पूरा बर्न हो जाएगा, राइट, एट वन ऑफ द टो ऑफ द वेल्डिंग, एक एज के ऊपर आपका वेल्ड मेटल जो है वो पूरा बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो वहाँ पे एक जो है वो छोटा सा एक जैसे बोल सकते हैं ना एक डेफ्ट जैसा गड्ढा जैसा बन जाता है। द पोर्शन ऑफ द बेस मेटल विच इज़ मेल्टेड अवे विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए अंडरकोट, राइट। अब इसके डेवलप्ड होने के पीछे के जो रीज़न है वो रीज़न क्या हो सकते हैं? तो वो जो रीज़न है वो रीज़न ये हो सकता है, जैसे आपका हायर एम्पियर आपने यूज़ कर लिया, रॉन्ग इलेक्ट्रोड जैसे ह्यूमिडिफाइड वाला इलेक्ट्रोड जो है वो आपने यूज़ कर लिया, उसका रॉन्ग जो है वो एंगल यूज़ कर लिया, राइट। वो हमने जब वेल्डिंग टेक्निक को स्टडी किया था उसके दौरान जो है वो हमने एंगल जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि कौन सा
किस टेक्निक के अंदर वेल्डिंग जो रोड है उसका एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, राइट। फिर आपका आर्क लेंथ, जो आर्क लेंथ है वो बेसिकली जो उसका एकदम उसके पीछे का जो लो है उसके हिसाब से आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी वो जो है वो 1.5 डी जितना होना चाहिए। डी दैट मीन्स द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। सपोज आप 3 mm के डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो तो 3 इंटू 1.5 जितना आर्क लेंथ होना चाहिए, उससे लंबा आर्क लेंथ यूज़ करोगे तो फिर अंडरकट होने के चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड इज़ टू लार्ज फॉर द बेस मेटल, राइट। बेस मेटल के हिसाब से इलेक्ट्रोड बहुत बड़ा है तो फिर वहाँ पे यानी थिकनेस, डायमीटर जो है वो थिकनेस से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो फिर ये अंडरकट होने के चांसेस वहाँ पे डेवलप होते हैं। देन द प्रिवेंशंस। नाउ व्हाट इज़ द प्रिवेंशंस बिहाइंड दैट? द प्रिवेंशन इज़ द क्लीन मेटल इज़ बिफोर द वेल्डिंग। अगर आप जो है हर एक पास के पहले जो है उसको क्लीन कर दोगे तो फिर आपको अगर कहीं पे आपका बेस मेटल बर्न हो गया और आपको क्लीन करके ये पता चल गया तो आप उसको नेक्स्ट वेल्ड बीड के से जो है वो आप उसको कवर कर सकते हो, राइट। सो ये एक जो है उसका प्रिवेंशंस मेथड है, उसको आप रिकॉग्नाइज दूसरे पास के पहले जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हो और विजुअली हो सकता है, ऐसी कोई उसमें बड़ी बात है नहीं। अगर वो रह जाता है तो फिर आपको कैसा करना पड़ेगा, तो वेल्ड को जो है वो यू हैव टू वेल्ड विद द स्मॉलर इलेक्ट्रोड्स, छोटे डायमीटर इलेक्ट्रोड से उसको वेल्ड करना पड़ेगा। समटाइम मस्ट बी अ लो हाइड्रोजन विद द प्री हीट। आपको प्री हीट, आपको जो आपका बेस मेटल है उसको नीचे से हीट करके, राइट, सर्टेन काइंड विद द टेम्परेचर लिमिट आपको हीट करके उसके बाद जैसे वो हीट है उसके बाद सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आपको वेल्ड करना पड़ेगा। तो वो जो है वो आपका बेस मेटल जो है वो वेल्ड मेटल के साथ प्रॉपर तरीके से वो फ्यूज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अंडरकट। यहाँ पे आप जो है वो स्कीमेटिक फिगर के अंदर ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जो वीड आपका जो बीड जो है वो डिपॉजिट हुआ है ना, उसके जो एक साइड वाला कॉर्नर है वो एक साइड वाली जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रॉपरली उसके ऊपर डिपॉजिट हुई है। अब उसके बजाय जो है वो राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड आप देखोगे तो छोटे छोटे एक माइनर जो है वो आपको लाइन जैसा दिख रहा है, वो जो है वो अंडरकट है। नाउ द थर्ड विच इज़ दी थर्ड वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज़ दी पोरोसिटी। अब पोरोसिटी किसको बोल सकते हैं? तो पोरोसिटी जो है उसको बोल सकते हैं जो एक वैक्यूम आपके बेस मेटल और वेल्ड मेटल के बीच जो है एक वैक्यूम बन जाता है। जैसे आपका इलेक्ट्रोड हो गया उसके अंदर हाइड्रोजन कंटेंट था या फिर एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशंस हो गया आपका वेल्ड मेटल का लिक्विड कंडीशंस के अंदर, तो एक छोटा सा बबल बन जाता है। अब वो बबल जो है वो लिक्विड मेटल के अंदर बन गया है, वो आगे जाके वो पोरोसिटी बन जाता है, राइट। इन दिस डिफेक्ट द एयर बबल और द गैसेज आर द प्रेजेंट्स इन द वेल्ड जोन। सम काइंड ऑफ द गैसेज, राइट, वो अगर इंसर्ट हो जाए तो फिर ये जनरेट होने के चांसेस होते हैं। एयर बबल के कारण जो है वो पोरोसिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। सो दिस आर द प्राइम रीज़न और इसको हम लोग पोरोसिटी बोलते हैं। ये चीज़ आपको फर्स्ट फिगर के अंदर जो है वो दिख रही और सेकंड जो फिगर है उसका एक्सरे इमेज है। तो एक्सरे इमेज के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे पोरोसिटी जो है वो दिखाई दे पड़ती है। अब इसके पीछे का जो बेसिक ये डेवलप्ड होने के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न क्या हो सकता है? तो ये रीज़न जो होता है वो इंक्लूजन्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस का इंक्लूजन हो जाना, देन द सल्फर इन द वेल्ड मेटल, देन द सरफेस कॉन्टामिनेशंस, सरफेस का कॉन्टामिनेशंस हो जाना प्रॉपर तरीके से, वो एक तरीके से कॉन्टामिनेशंस नहीं होता है उस, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? इफ़ वी आर यूजिंग द स्लोअर स्पीड्स टू अलाउ द गैस टाइप एस्केप्स, अगर हम लोग एक धीमी तरीके से जो है वो वेल्ड करके और गैस को बाहर निकलने का जो है एक वैकेंट जो है वो प्रोवाइड करें तो फिर ये पोरोसिटी होने के चांसेस जो है वहाँ पे कम हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पोरोसिटी। द नेक्स्ट विच इज़ दी इनकम्प्लीट फ्यूजन्स। नाउ व्हाट इज़ इनकम्प्लीट फ्यूजन्स? तो इनकम्प्लीट फ्यूजन्स जो है वो आपको जो है वो मैं एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ तो
आपका जो बीड है, आपका जो है वो वेल्ड मेटल जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से बेस मेटल के साथ फ्यूज़ नहीं हो रहा है, then which is called as an incomplete fusion, then which is designated as an incomplete fusion. So a weld bead in which a fusion has not occurred, a weld bead in which a fusion has not occurred throughout the entire cross sections of the joint, a weld bead in which the fusion has not occurred throughout the entire sections, यानी आपका जो है वो पूरा वेल्ड सेक्शंस के अंदर आपका वेल्ड बीड का जो है वो बेस मेटल के साथ किसी भी जगह जो है वो एक प्रॉपर तरीके से फ्यूज़ नहीं होना, राइट? तो उसको जो है वो इनकम्प्लीट फ्यूजन बोल सकते हैं। अब इनकम्प्लीट फ्यूजन होने के पीछे जो है वो आपको स्कीमेटिक्स के अंदर जो है वो यहाँ पे एक दिख रहा है, जो आप देख लीजिए। एक मेरे पास टी जॉइंट है, सॉरी एल जॉइंट है, और एक जो है वो मेरे पास जो है वो वी ग्रू के अंदर जो है वो हमने बट जॉइंट के अंदर जो है वो हमने वेल्ड किया है। तो आपने जैसे बीड को वेल्ड किया तो आप देख लीजिए कि वेल्ड जैसे बीड हुआ तो इसके बीच एक छोटा सा एक जगह पे ऐसा हुआ है कि आपका वेल्ड मेटल जो है वो प्रॉपर तरीके से बेस मेटल के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ है, राइट? और एल जॉइंट के अंदर देख लीजिए तो आपने एल जॉइंट के अंदर जो है वो जैसे ही आपने एक तरीके से वो कॉर्नर के ऊपर वेल्ड किया तो वहाँ पे जो है वो प्रॉपर तरीके से एक जगह पे वहाँ पे वैकेंट रह गया है। पूरी तरीके से जो आपका वेल्डिंग कंज्यूमेबल था वो वेल्डिंग कंज्यूमेबल फ्यूज़ होके जो है वो उस कॉर्नर तक नहीं पहुंच पाया, वहाँ पे वैकेंसी रह गई। तो उसको जो है वो हम लोग इनकम्प्लीट फ्यूजन, प्रॉपर तरीके से आपका वेल्ड मेटल का बेस मेटल के साथ फ्यूज़ नहीं होना, उसको बोलते हैं। अब वेल्ड, सो उसके पीछे के जो रीज़न होते हैं वो रीज़न क्या हो सकते हैं? सो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ द लो एम्पियर, आपका फास्ट ट्रैवल स्पीड, शॉर्ट आर्क गैप बहुत छोटा है, देन द लैक ऑफ द प्री हीट, आपने वेल्ड मेटल को प्रॉपर तरीके से प्री हीट नहीं किया था, द इलेक्ट्रोड इज विच इज़ टू स्मॉल, बहुत छोटा इलेक्ट्रोड डायमीटर आपने यूज़ करके वेल्ड किया हो, या फिर अनक्लीन ऑफ द बेस मेटल, आपने प्रॉपर तरीके से बेस मेटल को उसको क्लीन नहीं किया था, तो फिर ये चांसेस हो सकते हैं। अब उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो उसको एलिमिनेट द पोटेंशियल कोजेज़। अब इसको ये सारे जो कोजेज़ हैं उसको आपको रिमूव करने पड़ेंगे, तभी ये इनकम्प्लीट जो है वो फ्यूजन जो है वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। देन उसको रिपेयर कैसे करें? तो आपको उसको जहाँ पे भी इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ है उस डेप्थ तक आपको जाके ग्राइंड करके उसको निकालना पड़ेगा, फिर उस जगह पे आपको रीवेल्ड करना पड़ेगा, और इस तरीके से जो है वो उसके बाद आपको रीवेल्ड करने के बाद फिर से हमें जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है उसको यूज़ करके उसको प्रॉपर तरीके अब फ्यूज़ हुआ है कि नहीं वो चेक करके फिर उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इनकम्प्लीट फ्यूजन। नाउ नेक्स्ट विच इज़ दी क्रैक। क्रैक जो है वो वर्ड जो है वो सब ने सुना हुआ वर्ड है, वो एक ना एक बार तो आपने सुना ही होगा, राइट? सो क्रैक जनरेट होने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। इट इज़ अ डिसकंटिन्यूटी इन द मेटल दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्ट्रेंथ। ये एक तरीके से ऐसी जो है वो डिफेक्ट है जो आपका जो वेल्ड मेटल हो या फिर बेस मेटल हो, दोनों के अंदर जो है उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो कम कर देती है। अब जो क्रैक है वो जनरेट होने के पीछे जो है यानी 2 या 3 तरीके के रीज़न हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि कोई मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका बेस मेटल के अंदर, जैसे जब आपका बेस मेटल जब बना होगा तब उसको मेल्ट करके फिर उसको फ्रीज़ करके बनाया होगा, तो उसके ड्यूरेशन भी कोई रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस रह गए हैं, तभी जो है वो क्रैक हो सकता है, और ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस वो ज़्यादा प्रोपोगेट हुआ होगा। या फिर एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि जब आप वेल्डिंग कर रहे थे तो वेल्डिंग के ड्यूरिंग द वेल्डिंग जो है वो आपका जो है वो लो डक्टिलिटी हो वेल्ड का, वो प्रॉपर तरीके से वो एक तरीके से अंदर स्ट्रेंथ नहीं है,
और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, यानी मैं आपको इस वर्ड को और आसान लैंग्वेज में अगर बताने की कोशिश करूं तो टेम्परेचर डिफरेंस, यानी एक साइड से विंड बील्ड जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ठंडा हो जा रहा है और दूसरे एंड पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अभी 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 उसको हमने एकदम प्योर करके वहाँ पे उसको एक एंड पे, जैसे एक स्टार्टिंग एंड होता है वेल्ड का, एक एंडिंग एंड होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब जिस एंड पे अगर आप वेल्डिंग ख़त्म कर रहे हो तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर कम होना चाहिए, पर कम होने का जो डिफरेंसेस रहना चाहिए ना, वो टेम्परेचर में एकदम वास्ट डिफरेंस हो गया। जो स्टार्टिंग एंड था वो एकदम फास्ट जो है उसका कूलिंग हो गया, और एंड जो है वो अभी अभी टेम्परेचर उसका अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस जितना है। तो फिर ये जो बहुत बड़ा डिफरेंसेस है वो एक श्रिंकेज डेवलप करता है, यानी मेटल जो है वो श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है, और इस तरीके से जो है वो क्रैक होने के चांसेस डेवलप होते हैं। व्हेन अ फिनिशिंग मूव बैक टू द इलेक्ट्रोड फिल अप टू द क्रैक विच इज़ इंक्रीज द क्रेटर फिल टाइम बाय द पावर सोर्स। अब उसको आपको मैं बताऊँ, उसको प्रिवेंट करने के पीछे जो एक रीज़न जो है वो रीज़न वही है जो आपको प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करके जो है वो प्रॉपर वेल्डिंग प्रोसेस पैरामीटर्स और कंज्यूमेबल को यूज़ करके जो है वो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन ओवरलैप, यहाँ पे ओवरलैप में आपको स्कीमेटिक फिगर के अंदर आपको दिख ही रहा है कि आपका जो वेल्ड मेटल है यानी वेल्डिंग कंज्यूमेबल है वो डिपोजिशंस के दौरान जो है वो क्या हो रहा है, बेस मेटल के ऊपर कवर हो जा रहा है। दैट इज़ वन काइंड ऑफ द ओवरलैप, राइट। ज़्यादा आपने उसको ओवरलैप कर दिया, ज़्यादा वहाँ पे डिपोजिट कर दिया, दिस डिफेक्ट विच इज़ कॉल्ड इज ए ओवरलैप। अब ये ओवरलैप कैसे डेवलप होता है, द वेल्ड मेटल इज स्पिल्स बियॉन्ड द जॉइंट ऑन टू द पार्ट सरफेस बट देयर इज अ नो फ्यूजन इज अकर। वहाँ पे किसी तरीके से फ्यूजन नहीं हो रहा है, वो ऊपर ऊपर से जो है वो वहाँ पे आपको दिख रहा है, पर एक तरीके से वहाँ पे कोई भी तरीके से उसका बेस मेटल के साथ जॉइंट नहीं हुआ है, राइट। अंदर जो है वी ग्रू के अंदर जो है वो पूरा मर्ज हो चुका है, पर आप ऊपर देखिए जो आपने एक्स्ट्रा जो है वो वेल्ड मेटल को डिपॉजिट किया उसका जो है वो एक तरीके से ऊपर ऊपर का लेयर है, वो बेस मेटल के साथ प्रॉपरली जो है वो फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको जो है वो हम लोग ओवरलैप बोलते हैं। अब उसके पीछे के जो रीज़न जो है वो क्या हो सकता है, एक तो प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक आपने यूज़ किया राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड में से, देन देर इज़ ए स्टिप इलेक्ट्रोड एंगल, यानी आपका इलेक्ट्रोड का एंगल जो है वो एक तरीके से बहुत ही गलत एंगल से आपने वेल्ड किया होगा, या फिर फास्ट ट्रैवल स्पीड, आपने उसको ज़्यादा फास्ट तरीके से अगर मूव कर लिया है तो फिर एक वो चांसेस हो सकते हैं कि ये बहुत बड़ा चांसेस हो सकता है कि अपने बहुत फास्ट ट्रैवल स्पीड यूज़ किया तो एक तरीके से अनवांटेड प्लेसेस के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। अब उसको प्रिवेंट कैसे करें, तो ओवरलैप इज़ ए काउंटर प्रॉब्लम्स, राइट। एक तरीके से वो काउंटर प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक विल प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। अगर हम लोग प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। द नेक्स्ट विच इज़ द अंडरफिल। अब जैसे ओवरलैप हो गया, अब ऐसी उसका एक रेप्लिका वाला डिफेक्ट है विच इज़ द अंडरफिल। एक तरीके से जितना आपको फिल करना है उससे आपने कम फिल किया है, राइट। एक तरीके से छोटा ओवल जैसा बन जाता है, छोटा गड्ढा जैसा बन जाता है, और आपने प्रॉपर तरीके से बेस मेटल के लेवल तक आपने फ्यूज़ नहीं किया है, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए अंडरफिल। वो थोड़ा बाकी रह गया है। द डिप्रेशंस इन द वेल्ड विच इज़ बिलो द एडजेसेंट बेस मेटल टू द मेटल सरफेस। एक तरीके से एक डिप्रेशंस आपको ऑब्जर्व होता है वेल्ड के अंदर विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए अंडरफिल। अब उसके पीछे का रीज़न वही है जो रीज़न जो था वो हमने ओवरलैप के ड्यूरिंग देखा था कि आप बेसिकली ये जो होता है वो टेक्निक रॉन्ग टेक्निक का सिलेक्शंस के ही लिए होता है। तो ये भी अंडरफिल भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो डेवलप्ड होता है, जिस तरीके से आपने रॉन्ग वेल्डिंग टेक्निक यूज़ कर लिया तो फिर ये डेवलप्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन द प्रिवेंशंस, वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स, we have to apply the proper welding techniques
फॉर द वेल्ड टाइप्स एंड द पोजिशंस। आपको प्रॉपर टाइप्स ऑफ पोजिशंस के साथ जो है वो वेल्डिंग टेक्निक को सिलेक्ट करना है। एंड वी हैव टू यूज़ अ स्टीपर बेड बिफोर द कवर दी पास। नाउ अगर ये हो गया है तो फिर कैसे उसको रिमूव करें? वी हैव टू अप्लाई द फिल द वेल्ड, उसको वहाँ पे फिल कर देना है, राइट। एंड विच इज़ मे रिक्वायर द प्रिपरेशंस बाय दी ग्राइंडिंग। थोड़ा सा ग्राइंड करके एक फ्लैट लेवल पे उसको लाके फिर उसको जो है वो आपको ग्राइंड करके फ्लैट लेवल पे लाके और एक या दो पास जो है वहाँ पे फिल करके फिर उसको आपको लेवल में बेस मेटल के लेवल में ला देना है, राइट। देन द स्पैटर। अब जब ये चीज़ तो आप सब ने ऑब्जर्व ही की होगी कि आप जब भी वेल्डिंग जिस जिस स्टूडेंट्स ने वेल्डिंग किया होगा तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो लिक्विड मेटल्स के जो है वो आजू बाजू गिर रहे होते हैं। अब विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए स्पैटर। जो छोटे छोटे दाने जो है वो वेल्ड मेटल के आसपास जो है वो एज ए फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं, विच इज़ ए वन टाइप ऑफ दी स्पैटर। उसको हम लोग स्पैटर बोलते हैं। ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ द मेटल्स दैट अटैच देमसेल्फ टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल। अब उसके पीछे जो है वो एक वही रीज़न है। एक तो आप बहुत ज़्यादा पावर के साथ, बहुत ज़्यादा करंट के साथ जो है वो आप वेल्ड कर रहे हैं तो फिर जो है वो स्पैटर होते हैं, या फिर डैम्प इलेक्ट्रोड, या फिर इलेक्ट्रोड जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। जैसे ख़राब दैट मीन्स यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ख़राब यानी वो पूरी तरीके से उसके अंदर भेज लग चुका है, बिक चुका है, राइट। ऐसे इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हो वेल्डिंग के लिए तो फिर स्पैटर होने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो? तो ठीक करने के लिए आपको जो है वो उसका आर्क पावर जो है उसको कम करना पड़ेगा। रिड्यूस द आर्क लेंथ, लेंथ को कम करना पड़ेगा आर्क की। और यू हैव टू यूज़ द ड्राई इलेक्ट्रोड, प्रॉपर तरीके से ड्राई। अगर उसको आप बैक कर ले यूज़ करने से पहले तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसको इस तरीके से आप जो है वो इस डिफेक्ट को जो है वो रिमूव कर सकते हो। और अगर आपने स्पैटर जो है वो डेवलप्ड हो गया है तो फिर आप ग्राइंड करके उसको रिमूव कर सकते हो, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्पैटर। नाउ द नेक्स्ट विच इज़ द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशंस। अब पेनिट्रेशंस दैट मीन्स व्हाट, जैसे इनकम्प्लीट फ्यूजन था तो वो बेस मेटल के साथ प्रॉपर तरीके से फ्यूज़ नहीं हुआ था। अब यहाँ पे ऐसा ही एक डिफेक्ट है विच इज़ द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन दैट मीन्स क्या कि वो प्रॉपर तरीके से जो लिक्विड मेटल है, जो आपका वेल्ड मेटल है, वो प्रॉपर तरीके से अंदर जो आपका वी ग्रू है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से पेनिट्रेट यानी वो डेप्थ तक जितनी डेप्थ है उस डेप्थ तक पहुंचा नहीं है। जो लास्ट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा छूट गया है, वहाँ पे आपका लिक्विड मेटल किसी तरीके से वहाँ पे पहुँचा नहीं है वो और फ्यूज़ नहीं हुआ है बेस मेटल के साथ, और एक छोटा ए नीचे जो है वो बच जाता है, वहाँ पे वेल्ड नहीं हुआ है, तो फिर उसको हम लोग इनकम्प्लीट पेनिट्रेशंस बोलते हैं। सो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन इज हैपन्स व्हेन योर फिलर मेटल एंड द बेस मेटल आरंट जॉइंट प्रॉपरली, वो प्रॉपरली जॉइंट नहीं हुआ है, एंड द रिजल्ट इज ए गैप और ए क्रैक ऑफ सम शॉर्ट्स। इसके पीछे का रीज़न जो है दैट इज़ अ लोअर एम्पियर, लो प्री हीट, टाइट रूट ओपनिंग्स, देन ए फास्टर ट्रैवल स्पीड, शॉर्ट आर्क लेंथ। ये जो है इसके पीछे के जो है वो बेसिक रीज़न है। इस रीज़न से जो है वो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशंस होते हैं। अब ये पेनिट्रेशन को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं? तो ठीक करने के लिए जो है वी हैव टू यूज़ दी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। जो प्रोसेस पैरामीटर्स जो हमें लिख के दिए गए हैं उस प्रोसेस पैरामीटर को यूज़ करके अगर वेल्ड करेंगे तो इनकम्प्लीट फ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर ये इनकम्प्लीट हुए हैं तो फिर आप देखिए इसका जो है वो एक तरीके से इस सॉल्यूशन ये है कि आपने फॉरवर्ड साइड से तो वेल्ड कर दिया है, तो फिर आपको वेल्ड जो प्लेट है उसको उल्टा करना पड़ेगा, फिर उसको बैक गाउजिंग करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे के साइड से रिमूव करना पड़ेगा और पीछे से साइड के एक पास जो है वो वेल्ड करना पड़ेगा। उस तरीके से आप जो है वो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को जो है वो वहाँ पे ठीक कर सकते हो। और द लास्ट डिफेक्ट विच इज़ द एक्सेसिव पेनिट्रेशन, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया है, नीचे से बाहर निकल रहा है, तो उसको कैसे कर सकते हो? तो उसको ये जो टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो है वो नॉर्मली बैक साइड के ऊपर जो है वो एक बैकिंग स्ट्रिप लगाया जाता है।
जो आपके जो रूट गैप है उसको मेंटेन करता है, राइट, जिसकी वजह से जो है वो एक सिरामिक का बैकिंग स्ट्रिप होता है जो आपके जो एक्सेसिव जो लिक्विड मेटल्स वेल्ड मेटल वहाँ पे फ्यूज़ हो रहा है उसको उस डेप्थ के नीचे जो है वो नहीं आने देता, और प्रॉपर तरीके जैसे वेल्डिंग खत्म हो जाएगा तो फिर उसको वो हम लोग जो बैक साइड से जो सिरामिक स्ट्रिप हमने लगाया था उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, राइट, और इस तरीके से एक्सेसिव पेनिट्रेशन होने से बच सकता है। और इस होने के पीछे के जो रीज़न है वो रीज़न यही हो जाता है कि जो आपका दोनों जो वी है जो आपने जॉइंट प्रिपरेशंस डेवलप किया उसके बीच जो है वो गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप है। तो फिर क्या होता है कि लिक्विड मेटल जो है वो एकदम ज़्यादा स्पीड से जो है वो वहाँ से मेल्ट होके नीचे चला जाएगा, राइट। तो ये एक्सेस पेनिट्रेशन इसके हिसाब से जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। देन एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटी दैट मीन्स एक तरीके से ज़्यादा एक ओवरलैपिंग हो जाना। तो इसके पीछे का रीज़न वही होता है कि एम्पियर ज़्यादा अगर यूज़ कर लिया या फिर ज़्यादा ट्रैवल स्पीड यूज़ कर ली तो इसके हिसाब से जो है वो एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटीज जो है वो डेवलप्ड होती है। अब एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटीज़ जो है उसको रिमूव करने के लिए प्रॉपर टेक्निक, और ये कॉन्वेक्सिटीज़ जो है ना वो एक तरीके से टी जॉइंट हो गया, एल जॉइंट हो गए, एच जॉइंट हो गए, इस तरीके के जॉइंट प्रिपरेशंस के अंदर कॉन्वेक्सिटी यानी एक तरीके से बाहर का जो है ढलान वो इस तरीके के जॉइंट टाइप्स के अंदर ये टाइप के डिफेक्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो एक तरीके से आप अगर उसको जॉइंट प्रिपरेशंस ठीक तरीके से करोगे और प्रॉपर एंगल के अंदर जो है उसको वेल्ड करोगे तो फिर कॉन्वेक्सिटी एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटी होने के चांसेस जो है वहाँ पे कम हो जाते हैं। देन द एक्सेसिव कॉन्केविटी यानी एक तरीके से गड्ढा हो जाना, तो उसके पीछे भी यही रीज़न है, प्रॉपर जॉइंट प्रिपरेशन विच इज़ रिक्वायर्ड एंड प्रॉपर वेल्ड एंगल विच इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ द कॉन्वेक्सिटीज एंड कॉन्केविटी विच इज़ ओवर विच इज एक्सिविटी। देन द आर्क ब्लो। अब आर्क ब्लो जो है वो किसको बोलते हैं? ब्लो दैट मीन्स जो है अगर आर्क गैप बहुत ज़्यादा है तो फिर जो है वो आर्क जो है वो हवा की वजह से जो है वो ब्लो करेगा, घूमेगा, तो उसको हम लोग आर्क ब्लो बोलते हैं, राइट। द बेसिक रीज़न वही होता है जो बड़ी आर्क लेंथ के साथ ये डेवलप्ड होता है। द आर्क डिफ्लेक्शंस वो डिफ्लेक्ट होता रहता है एज द रिजल्ट ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ लीड क्लैंप्स। अगर एक मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी जो है वो आर्क ब्लो यहाँ पे होता है। The arc deflection as a result of the magnetic effects in the directions of a heavy part of the workpiece, especially at the corner and the edge. जब आप वेल्ड को एंड करने की डायरेक्शंस में है तो उस डायरेक्शंस के अंदर जो है वो आर्क ब्लो होने के चांसेस जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू वो हायर थिकनेस में ज़्यादा हो जाता है। अब उसको ठीक करने के लिए यूज़ ए एसी इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज़ पॉसिबल। जब आप एसी इलेक्ट्रोड एसी पोलैरिटी के साथ वेल्ड करोगे तो आर्क ब्लो होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। ट्राई द वेल्डिंग अवे फ्रॉम द अर्थ क्लैम्प, यानी आपने जो अर्थ किया है ना उस क्लैम्प को आप थोड़ा दूर करके करिए, क्योंकि वो जो है वो अर्थिंग जो है ना वो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वो नज़दीक के अंदर डेवलप करता है। अगर उसको थोड़ा दूर करके आप वेल्डिंग करोगे तो फिर ब्लो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, राइट, विच इज़ ऑल अबाउट द आर्क ब्लो। ये आपको पूरा जो है वो फ्यूजन जोन यहाँ पे बताया गया है, किसको हीट अफेक्टेड, किसको बेस मेटल बोलते हैं, फिर बेस मेटल के बीच के अंदर वी ग्रू के अंदर जो है वहाँ पे जो हम लोग फ्यूज़ करते हैं उसको फ्यूज़न जोन बोलते हैं। फिर उसके आजू बाजू के जो एरिया है दोनों साइड आप 10-10 mm देख लीजिए, तो 10 या 15 mm देख लीजिए, उसको जो है वो हीट अफेक्टेड जोन, वो वेल्ड की हीट की लिक्विड जो हीट है, लिक्विड मेटल को हम लोग डिपॉजिट कर ले उसकी हीट से जो है वो सराउंडिंग जो एरिया है वो पूरा अपना प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर देता है, दैट इज डेजिग्नेटेड एज ए हीट अफेक्टेड जोन। एंड जो उसके आजू बाजू वाला जो स्ट्रक्चर है विच इज डेजिग्नेटेड एज ए ओरिजिनल स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूजन वेल्ड जोन। अब किसको वेल्डेबिलिटीज बोलते हैं? the capacity of the metals or a combinations of the metals to be welded
into a suitable structure and for the resulting weld joint to possess the required metallurgical properties to perform a satisfactorily or intended service which is the characterized by the weldability. A good weldability which is characterized by a the absence of the weld defect. अब weldability किसको बोल सकते हैं? जिसके अंदर डिफेक्ट ना हो, राइट, जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो, डक्टिलिटी हो, टफनेस हो वेल्ड के अंदर, उसको हम लोग वेल्डेबिलिटी जो है उससे डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने सारे जो है वो वेल्डिंग डिफेक्ट्स को जो है वो समझने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट मैंने सारे वेल्डिंग डिफेक्ट को कवर कर लिया है। फिर आपको वेल्ड जोन के बारे में बताया, फ्यूजन जोन किसको बोलते हैं, हीट अफेक्टेड जोन किसको बोलते हैं, और वेल्डेबिलिटी जो है उसको मैंने डिस्कस करने की आपके साथ कोशिश की है। अगर ये लेक्चर के अंदर आपको किसी भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझे प्लीज़ इसके कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। और इसके साथ जो है यहाँ पे आपका जो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमने इंट्रोडक्शंस लिया, वेल्डिंग लिया, सोल्डरिंग लिया, ब्रेजिंग लिया, फिर क्लासिफिकेशंस लिए, और उसके सारे क्लासिफिकेशन के जो प्रोसेसेस थे वो डिस्क्राइब किए मैंने। और इसके साथ आज लास्ट लेक्चर के अंदर डिफेक्ट और उसके रेमेडीज़ और उसके जो कोजेस क्या है वो हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर जो है वो इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।